Let us discuss random process today. We have already seen in the previous lecture about random variables. Now, if we talk about random process, we see that if any random experiment is given a time dimension, then each outcome of that experiment will appear at some certain time, and we say that that random experiment is converted to random process. इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से कि अगर हमारा कोई रैंडम वेरिएबल टाइम का भी फंक्शन बन जा रहा है तो उसको हम रैंडम प्रोसेस कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सैम्पल स्पेस है एस और लेमडा हमारा आउटकम है जो उस सैम्पल स्पेस को बिलोंग करता है, और जो टाइम की वैल्यू हमारे पास है दैट इज़ टी, वो वैल्यूज़ हमारी इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक हो सकती हैं। तो किसी स्पेसिफिक टाइम पे, जैसे कि अगर हम कहते हैं t इज़ इक्वल्स टू टी नॉट टाइम पर, अगर हमारा रैंडम वेरिएबल को हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल X से, तो वी कैन से दैट एट एनी स्पेसिफिक टाइम विच वी आर टेकिंग एज t इज़ इक्वल्स टू टी नॉट, x is a random variable whose value will depend upon lambda. Also we can say that for any specific outcome lambda I, यानी अगर हम किसी specific outcome lambda I की बात करते हैं तो there is a single time function which is x lambda I comma t naught. इस फंक्शन को हम कहते हैं सैम्पल फंक्शन, and the collection of the all sample functions is known as ensemble. ensemble हमारा बेसिकली कलेक्शन है ऐसे सारे सैम्पल फंक्शंस का। सैम्पल फंक्शंस जो हमारा सैम्पल स्पेस को बिलोंग करता है। सैम्पल स्पेस वो होता है जो कि किसी एक्सपेरिमेंट के सारे आउटकम्स को अपने अंदर रखता है, यानी सारे आउटकम सैम्पल स्पेस को बिलोंग करते हैं। तो बेसिकली रैंडम प्रोसेस को हम x ब्रैकेट में t से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब कि अगर हम देखें so we see that we can represent any random process by x lambda comma t. That means the outcome lambda is also the function of time here. So in this way we represent our random process. Now if we take the example of random process, the very simple example is a set of voltage waveforms which is generated by thermal electron motion in a large number of identical resistors. यानी हमारे पास बहुत से resistors हैं जो कि आइडेंटिकल हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन्स के थर्मल मोशन की वजह से जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है उसकी स्टडी हमें करना है। अब यहाँ पर अगर हम उनके वेवफॉर्म्स को ऑब्ज़र्व करें तो हमने यहाँ पर n नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स ले रखे हैं। ये पहला वाला हमारा जो वेवफॉर्म है दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग थर्मल नॉइज़ इन रजिस्टर 1. सेकेंड वाला वेवफॉर्म इज़ रिप्रेजेंटिंग थर्मल नॉइज़ इन रजिस्टर 2 विच इज़ आइडेंटिकल टू रजिस्टर 1. This is representing the thermal noise in resistor 3, and similarly this waveform is representing for nth resistor the thermal noise. On x-axis we can see that we have taken time. So this is basically x1 t. This can be said as x2 t, the second waveform. Similarly, the last can be represented as xn t because they are all random process and they are a function of time. Now, if we see this waveform, we can see for this instant. See, if we are seeing this instant, then here we will get the values of random variables sampled at time t is equals to t1. Now, suppose if we are talking about this point, then here we will have values of random variable which is sampled at time is t is equals to t2. Now we have
two methods here basically for to calculate the statistical average. We have ensemble average and time average. These two methods are used for calculation of statistical averages for random process. So let us first discuss about ensemble average, but before that we have to see about ensemble. अगर ये प्रीवियस वाला एग्जाम्पल हम देखते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा नॉइज़ थर्मल मोशन की वजह से रेजिस्टर्स में जनरेट हो रहा था, दैट वाज अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि यहाँ पर जो हमने वोल्टेज को प्लॉट किया हुआ है वो बेसिकली एज फंक्शन ऑफ टाइम प्लॉट किया है, यानी किस टाइम इंस्टेंट पर हमारा कितना नॉइज़ वोल्टेज जनरेट हो रहा है ये यहाँ पर दिखाया गया है। तो हम कह सकते हैं कि वी आर रिप्रेजेंटिंग नॉइज़ वोल्टेज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। हर टाइम पर जो नॉइज़ वोल्टेज है वो हमने रिकॉर्ड किया हुआ है। तो ये जो प्रोसेस हमने पूरा यहाँ पर दिखाया है बाय यूजिंग दिस कलेक्शन ऑफ वेव फॉर्म्स, ये प्रोसेस हमारा रैंडम प्रोसेस है। अगर हम एंसेम्बल की बात कर रहे हैं तो एंसेम्बल इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल वेव फॉर्म्स, यानी जितने पॉसिबल वेव फॉर्म्स हमको मिल रहे हैं उसके कलेक्शन को हम एंसेम्बल कहते हैं। अगर आइडियल कंडीशन की बात की जाए तो आइडियली हम इनफाइनाइट वेव फॉर्म्स लेके चलते हैं, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव फॉर्म्स का जो कलेक्शन है वो एंसेम्बल कहलाएगा। तो अगर हम स्टैटिस्टिकल एवरेज हमें कैलकुलेट करना है रैंडम प्रोसेस का, तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, एंसेम्बल एवरेज और टाइम एवरेज। तो अगर एंसेम्बल एवरेज की बात किया जाए तो इसमें हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं वाइल कीपिंग द टाइम कांस्टेंट और फिक्स्ड, यानी कि टाइम को फिक्स कर देंगे और फिर एवरेज विल बी टेकन आउट ओवर द एंसेम्बल ऑफ वेव फॉर्म्स। एंसेम्बल ऑफ वेव फॉर्म्स से हमारा मतलब है कि कलेक्शन ऑफ वेव फॉर्म्स पे, मतलब कि अगर हम अपना ये प्रीवियस वाला एग्जाम्पल ही कंसिडर करते हैं और हमें एंसेम्बल एवरेज कैलकुलेट करना है तो उसके लिए वी हैव टू टेक द मीन वैल्यू ऑफ द वोल्टेज V1 एट T1 टाइम, द वोल्टेज V2 at time T1, the voltage V3 at time T1 and similarly the voltage Vn at time T1, यानी टाइम को हमने फिक्स रख दिया है T1 पे, और इस T1 टाइम पे जो हमने यहाँ पर T1 टाइम को जो हमने फिक्स किया है इस पे हम वोल्टेज देख रहे हैं, जैसे V1, V2, V3 एंड सिमिलरली Vn। तो इस तरह के एवरेज को हम एंसेम्बल एवरेज कहते हैं। अगर हमारा रैंडम वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस है तो वहाँ पर हम मीन वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं इन फॉर्म ऑफ PDF, और उसकी वैल्यू हमारी होती है mx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x fx dx विथ लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, वेर fx ऑफ x हमारा PDF है। तो ये हमारे कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए होते हैं। नेक्स्ट हमारा टाइम एवरेज होता है। टाइम एवरेज में वी कैलकुलेट द स्टैटिस्टिकल एवरेज अलोंग द टाइम, देन दिस टाइप ऑफ मेथड इज़ नोन एज टाइम एवरेज। अगर हम टाइम एवरेज का यहाँ पर फॉर्मूला देखें तो हमको मिलता है इसके लिए फॉर्मूला दैट इज़ टाइम मीन वैल्यू। टाइम मीन वैल्यू हमारी ये कैलकुलेट होकर निकलती है 1/t इंटीग्रेशन ऑफ xt dt with the limits minus t/2 to t/2 where t tends to infinity। इसी फॉर्मूला को अगर हम चेंज करके लिखते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2t। अब हमारी लिमिट इंटीग्रेशन की चेंज होकर -t से t हो जाएगी, xt dt को हम इंटीग्रेट करेंगे विद द लिमिट t tends to infinity। तो ये हमारा टाइम एवरेज कैलकुलेट हुआ है वेयर द स्टैटिस्टिकल एवरेज इज टेकन अलोंग द टाइम। अब अगर हम ऑटो कोरिलेशन फंक्शन की बात करें तो कोरिलेशन में भी हमने देखा था कि हमारे पास दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक ऑटो कोरिलेशन फंक्शन होता है और दूसरा क्रॉस कोरिलेशन फंक्शन होता है। ऑटो कोरिलेशन फंक्शन में हमारे पास एक ही सिग्नल का हम उसके टाइम शिफ्टेड वर्जन के साथ सिमिलैरिटी चेक करते थे, और क्रॉस कोरिलेशन में हमारे पास दो सिग्नल्स होते थे और उनके बीच में कोरिलेशन को चेक करते थे। तो अगर ऑटो कोरिलेशन की बात करें तो इट रिप्रेजेंट्स द सिमिलैरिटी ऑफ एम्पलीट्यूड एट टाइम T1 and T2
and it is obtained by multiplying the amplitude of sample function at t1 and t2 and then taking the mean of this product over an ensemble। मतलब कि ये इसने ऑटो कोरिलेशन फंक्शन को कैलकुलेट करने के लिए मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट होगा ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ये बताया है। बेसिकली अगर इसको हम समझे तो इस तरह से देख सकते हैं कि कोई सिग्नल है, उसका किसी टाइम t1 पर और उसी सिग्नल का टाइम t2 पर हमको कोरिलेशन चेक करना है। उसी सिग्नल का या रेप्लिका का उसके भी कह सकते हैं, जो हम कोरिलेशन चेक कर रहे हैं डिफरेंट टाइम्स पर, उसको हम ऑटो कोरिलेशन फंक्शन बोल रहे हैं। और उसी को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर मैथमेटिकल फार्मूला हमारा दिया है। ऑटो कोरिलेशन को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल R से। XX मतलब कि हमारा सेम ही जो सिग्नल है या फंक्शन है वो सेम है। XX हम एक ही हमारा जो वेरिएबल है वो हमने उसको फिक्स कर रखा है x पर, और उसको उस रैंडम वेरिएबल को हम दो टाइम इंस्टेंट्स पर स्टडी कर रहे हैं, टाइम t1 पर और टाइम t2 पर। तो इसकी वैल्यू होती है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xt1 डॉट xt2, यानी पहले की वी विल मल्टीप्लाई द एम्पलीट्यूड ऑफ सैम्पल फंक्शन एट टाइम t1 एंड t2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस पूरे का हम मीन ले लेंगे। यहाँ पर e जो है वो हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू या मीन वैल्यू शो कर रहा है। तो इस तरह से ऑटो कोरिलेशन फंक्शन को मैथमेटिकली कैलकुलेट किया जाता है। नाउ वी नो दैट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x या मीन वैल्यू को कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्मूले से। इसकी वैल्यू होती है -∞ टू इन्फिनिटी x f(x) dx, जहाँ x की लिमिट -∞ से इन्फिनिटी है और f(x) हमारा PDF है रैंडम वेरिएबल x के लिए। तो ये हमारी मीन वैल्यू बताती है या एक्सपेक्टेड वैल्यू जिसको हम कहते हैं किसी भी कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए। तो इसी फॉर्मूले को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हमारी ऑटो कोरिलेशन फंक्शन की वैल्यू मिलेगी RXX ऑफ t1 t2 की जगह हम जनरली टाउ भी लिखते हैं, यानी इसको हम टाउ से भी रिप्लेस कर सकते हैं। टाउ हमारा टाइम डिफरेंस होता है t2 माइनस t1। तो इसकी वैल्यू निकल कर हमारी आती है इंटीग्रेशन विद द लिमिट्स -∞ टू +∞ x1 x2 fx ऑफ x1 x2 एट टाइम t1 t2 dx1 dx2। ये हमारे कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए ऑटो कोरिलेशन फंक्शंस की वैल्यू निकल कर आती हैं। इसी तरह अगर हम टाइम एवरेज की बात करें तो इसमें भी हम ऑटो कोरिलेशन फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर भी वही बात है कि इट गिव्स द सिमिलैरिटी बिटवीन अ सिग्नल एंड द टाइम शिफ्टेड वर्जन ऑफ द सेम सिग्नल, यानी उसी सिग्नल का हम उसी सिग्नल के साथ सिमिलैरिटी चेक कर रहे हैं लेकिन डिफरेंट टाइम्स पर चेक कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं इसको कि वी आर चेकिंग द सिमिलैरिटी ऑफ एनी सिग्नल विद द टाइम शिफ्टेड वर्जन ऑफ द सेम सिग्नल है, इसीलिए इसको ऑटो कोरिलेशन कहा जाता है। क्रॉस कोरिलेशन में हमारे पास दो अलग अलग सिग्नल्स होते हैं और उनके बीच में हम सिमिलैरिटी को चेक करते हैं। तो यहाँ पर ऑटो कोरिलेशन फंक्शन की हमारी वैल्यू निकलती है r टाउ इज इक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन ऑफ xt माइनस टाउ dt विद द लिमिट्स ऑफ t फ्रॉम -t/2 टू +t/2 वेयर t टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये तो हमने देखा कि हम कैसे स्टैटिस्टिकल एवरेज कैलकुलेट करते हैं फॉर रैंडम प्रोसेस, और इसके लिए हमने दो मेथड देखा है। दो मेथड में हमारे पास एंसेम्बल एवरेज थे और टाइम एवरेज थे। अब अगर क्लासिफिकेशन की बात की जाए रैंडम प्रोसेस की, तो हमारे पास हमको स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस मिलेगा, नॉन स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस मिलेगा। ये हमारा बहुत ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। फिर इसी में हमारे पास वाइड सेंस स्टेशनरी और स्ट्रिक्ट सेंस स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस भी आते हैं और फर्दर एरोगोडिक प्रोसेस भी मिलता है। तो सबसे पहले स्टेशनरी प्रोसेस देख लेते हैं क्या होता है। एनी रैंडम प्रोसेस, किसी भी रैंडम प्रोसेस को अगर हम देखें तो हम रैंडम प्रोसेस को जनरली रिप्रेजेंट करते हैं xt से, जहाँ ये रिप्रेजेंट होता है कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है दैट इज़ ऑल्सो द फंक्शन ऑफ टाइम। तो किसी भी रैंडम प्रोसेस को हम स्टेशनरी कहेंगे इफ़ इट्स स्टैटिस्टिक्स आर नॉट अफेक्टेड
बाय एनी शिफ्ट इन द टाइम ओरिजिन। इस बात को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि हमारा जो एंसेम्बल होगा, एंसेम्बल मीन दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, मतलब टाइम t1 पर जो मीन की वैल्यू आएगी वही टाइम t2 पर भी मीन की वैल्यू होगी, वही टाइम t3 पर भी होगी एंड सो ऑन। मतलब कि सारे टाइम इंस्टेंट्स पर हमारे एंसेम्बल की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होगी। दूसरा हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं, अगर हम स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस की बात कर रहे हैं, कि ऑटो कोरिलेशन फंक्शन हमारा टाइम डिफरेंस टाउ पर डिपेंड करता है, ना कि उन टाइम इंस्टेंट्स पर जिस पर हमें सिमिलैरिटी चेक करना है किसी सिग्नल की। यानी टाइम t1 पर और टाइम t2 पर अगर हमें सिग्नल्स के बीच में सिमिलैरिटी चेक करना है तो अगर हमारा प्रोसेस स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस है तो उसके लिए जो हमारा ऑटो कोरिलेशन फंक्शन निकलेगा वो डिपेंड करेगा सिर्फ टाइम डिफरेंस टाउ पर, ना कि उन टाइम इंस्टेंट्स पर जिस पे हमें ऑटो कोरिलेशन फंक्शन को, या उन टाइम इंस्टेंट्स पर जिस पे हमें सिमिलैरिटी चेक करना है। यानी द ऑटो कोरिलेशन फंक्शन इज डिपेंडिंग ओनली ऑन द टाइम डिफरेंस टाउ एंड नॉट ऑन द टाइम इंस्टेंट्स एट विच वी आर चेकिंग द सिमिलैरिटी ऑफ द सिग्नल। टाउ हमारा t2 माइनस t1 होता है और इसको हम टाइम शिफ्ट या टाइम लैग भी बोलते हैं। अब अगर हम वाइट सेंस स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस की बात करें तो इसको ऐसे देख सकते हैं कि द प्रोसेस में नॉट बी स्टेशनरी इन स्ट्रिक्ट सेंस। कोई भी प्रोसेस अगर देखा जाए तो वो स्ट्रिक्ट सेंस में स्टेशनरी नहीं होता है, क्योंकि अगर हम एक ट्रू स्टेशनरी प्रोसेस की बात कर रहे हैं कि कोई हमारा स्टेशनरी प्रोसेस है, वो 100% स्टेशनरी होगा कब, जब वो टाइम t इज इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट पर स्टार्ट हो और टाइम t इज इक्वल्स टू प्लस इनफाइनाइट तक स्टॉप ना हो। इस तरह के प्रोसेस को हम ट्रू सेंस में या स्ट्रिक्ट सेंस स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस कहते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली अगर बात की जाए तो इस तरह का प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। तो अगर हमारे दो कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं कि ऑटो कोरिलेशन फंक्शन और मीन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ शिफ्ट ऑफ टाइम ओरिजिन, तो हम कहते हैं कि हमारा प्रोसेस स्टेशनरी है। और इस तरह के प्रोसेस को हम बोलते हैं वाइट सेंस स्टेशनरी प्रोसेस, क्योंकि ये हमारी आधी प्रॉपर्टी स्टेशनरी प्रोसेस होने की भी पोजेस कर रहा है, इसलिए इसको वाइट सेंस स्टेशनरी कह रहे हैं। पूरे तरह से स्टेशनरी होने की प्रॉपर्टी को पोजेस नहीं कर रहा है, क्योंकि कोई भी ऐसा प्रोसेस है ही नहीं जो टाइम माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट हो और प्लस इनफाइनाइट तक स्टॉप ना हो। और ट्रू सेंस स्टेशनरी प्रोसेस की यही प्रॉपर्टी होती है। तो प्रैक्टिकली ऐसी प्रॉपर्टी मिलना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे सारे प्रोसेस जो होते हैं ज़्यादातर वो वाइट सेंस स्टेशनरी होते हैं, यानी कि उनमें मीन और ऑटो कोरिलेशन फंक्शन जो होते हैं दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ शिफ्ट ऑफ टाइम ओरिजिन। अब अगर एरोगोटिक प्रोसेस की हम बात करें तो एनी रैंडम प्रोसेस इज कॉल्ड एज एरोगोटिक इफ़ द टाइम एवरेज इज इक्वल्स टू एंसेम्बल एवरेज। ये दो स्टैटिस्टिकल एवरेज मेथड्स जो भी हमने ऊपर देखे थे, टाइम एवरेज के और एंसेम्बल एवरेज के, वो अगर इक्वल हो जाते हैं तो ऐसे प्रोसेस को हम एरोगोटिक रैंडम प्रोसेस कहते हैं। अब यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान देने वाली है कि ऑल एरोगोटिक प्रोसेस इज स्टेशनरी बट द कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास ब्रॉडली स्पीकिंग दो तरह के रैंडम प्रोसेस होते हैं, स्टेशनरी और नॉन स्टेशनरी। स्टेशनरी में हमारे पास स्ट्रिक्ट सेंस स्टेशनरी आता है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, और दूसरा वाइट सेंस स्टेशनरी होता है जो कि ज़्यादातर हमें रियल लाइफ में जितने भी प्रोसेस मिलते हैं वो वाइट सेंस स्टेशनरी या इसी को वीकली स्टेशनरी भी कहा जाता है, वही होते हैं।